آج کا سبجیکٹ ہے چنا ہوا، خدا کا چنا ہوا، برگزیدہ، چنا ہوا۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ خدا آج آپ کو چن لے؟ جب خدا آپ کو چنے گا تو آپ یقین کریں کہ خدا کا رحم آپ کے اوپر آئے گا، خدا کا کرم آپ کے اوپر آئے گا، اور جب چنے ہوئے گے تو خدا آپ کے ساتھ ہوگا، خدا آپ کے پاس ہوئے گا، جس طرح وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا، جس طرح موسیٰ کے ساتھ تھا، جس طرح وہ داؤد کے ساتھ تھا، جس طرح وہ یوحنا کے ساتھ تھا، جس طرح 12 شاگردوں کے ساتھ تھا۔ کیسی دنیا میں انہوں نے تہلکہ مچا دیا کہ اس نے کلام میں لکھا، وہ ساری رات اس نے پہاڑ پر دعا کی، ساری رات اس نے پہاڑ پر، صبح آتے ہی اس نے اپنے 12 شاگردوں کو بلا لیا، تمام شاگردوں کو ان میں سے 12 کو چن لیا، اور اس نے انہیں پوری دنیا پر اختیار دیا کہ پوری دنیا میں جاؤ، میرے کلام کو پوری دنیا میں حدوں تک پہنچا دو، اور جو کوئی بھی ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، جو کوئی بھی ایمان نہ لائے وہ ہلاکت کا فرزند بنے۔ آج یسوع کا یہ کلام اب چنے ہوئے لوگ بن جائے، آج اس کے خون خریدے ہوئے لوگ بن جائے، آج اس کے کلام کو اپنے دل میں لے لیں کہ کس طرح خدا نے ہمیں چنا ہے۔ وہ کہتا ہے، بھائی ڈاکٹر صاحب زور سے کلام پڑھیں گے۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ ہاللیلویا۔ آپ نے نہیں چنا، خدا نے آپ کو چنا، خدا یسوع نے آپ کو چنا، اور اپنے ہاتھ دکھا کے کہیں یس لارڈ، ہم تیرے چنے ہوئے لوگ ہیں، یس لارڈ، ہمارے ماتھوں پر تیرے پاک خون لگا ہوا ہے، ہمارے ماتھوں پر تیری چمک آ رہی ہے۔ ہاللیلویا۔ بہنیں بیٹیاں سب سے درخواست ہے اپنے ہاتھ بلند کریں اور خدا کو دکھائیں کہ خدا کے آپ سب چنے ہوئے لوگ ہیں۔ کلام میں لکھا ہوا ہے متی بھائی باب اس کی 14 میں، کیونکہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بادشاہ نے دعوت دی، تمام اپنے عزیزوں اور کام سب دوستوں کو بلایا کہ دعوت سب کی ہے، برے ذبح ہو گئے ہیں، بیل ذبح ہو گئے ہیں، سب کچھ تیار ہے، اور سب کو بلاؤ کہ اس برے کی ضیافت میں، خدا کی بادشاہ کی ضیافت میں آ جائیں۔ لیکن کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ان میں سے کوئی اپنے کھیت پہ چلا گیا، کوئی اپنے کاروبار میں چلا گیا، کسی نے اس کے نوکروں کو مارا، کسی نے اس کے نوکروں کو پیٹا، اور بادشاہ کو بھیجا کہ ہمیں فرصت نہیں ہے۔ وہ بادشاہ خداوند یسوع ناصری ہے۔ یہ خدا کا دربار، یہ خدا کی پاک ہیکل، میرے سارے خادم، میرے سارے بیٹے بیٹیاں آپ لوگوں کو فون کرتے ہیں، بلاتے ہیں، یسوع بلاتا تجھے، آ بیٹا کہ دودھ بارتا ہے، آ جا تو اپنے خدا کے گھر میں لے کے آ۔ اب سب کی ڈیوٹی ہے، جب آپ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں تو آپ کی رجحان دل سے خدا کی بارگاہ کے لیے، خدا کی تختگاہ کے لیے، خدا کی اس مقدس سائیکل کے لیے آپ کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے کہ آپ خدا کے لیے جتنی روحیں لا سکتے ہیں لے کر آئیں۔ آپ خدا کے لیے ایسے ایسے عجیب کام کریں کہ لوگ جانیں کہ خدا یسوع کے آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ مبارک لوگ ہیں، آپ اس کے نام سے کراتے ہیں۔ خدا اب آپ کو بے حد چاہتا ہے۔ کس طرح موسیٰ پورے بنی اسرائیل کو نکال کے لیا، کس طرح یوحنا نے پوری بنی اسرائیل کو قوم کو سانپ کے بچوں، اور تم کو کس نے عقل دکھا دی؟ یہودیوں کو پتا، وہ سب آتے تھے، خدا کے خوف سے ڈرتے تھے، اور انہوں سب نے بپتسمہ لیا، وہ سب نے خدا باپ بیٹا روح القدس کے نام کا بپتسمہ لیا، ان کی زندگیاں بن گئی، یسوع کی مہر لگی، وہ برگزیدہ بن گئے۔ جس طرح ہم سب برگزیدہ آسمان پر خدا کے ساتھ جائیں گے اور اس کے ساتھ جائیں گے، وہ کہتے ہیں دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا، جہاں میں ہوں گا وہاں میرے بیٹے بیٹیاں بھی ہوں گے۔ وہ آج اپنے برگزیدہ بیٹے سے یہ نام ملے گا جب آپ برگزیدہ اور اس کے چنے ہوئے لوگ کرائیں گے، یہ جانیں گے کہ خدا یسوع کے ہم بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آپ کے ماتھے کی چمک سے لوگ دیکھیں گے کہ یہ خدا کے بیٹے۔ کتنے چاہ رہے ہیں کہ میرے ماتھے سے میرے خدا یسوع کا نام روشن ہو، میرے ماتھے میں سے نظر آئے کہ یہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، میرے ماتھے سے نظر آئے کہ یہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ہاللیلویا۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہو، آج خدا کو پہن لو، آج خدا کو پہن لو، آج خدا کے جلالی کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ میرا کام نہیں،
भाई राकेश का काम नहीं, एंडरसन का काम, अब सबका काम है। हम दौड़ दौड़ के भाग के खुदा के लिए कुछ करें, और खुदा आसमान से रहम करने वाला। आप एक गिलास पानी भी किसी को देंगे तो खुदा उसका अजर आपको देगा, और वो अपने फरिश्ते को बोला इसका नाम भी लिख ले, किताबे हयात में लिख ले, इसका नाम भी किताबे हयात में लिख ले। किताबे मुकद्दस में लिखा है, रोमियो 11 बाब उसकी 4 और 5 में। मगर जवाब इलाही उसको क्या मिला कि मैंने अपने ये 7,000 बचा रखे हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं देखे। बस इस तरह उस वक्त को भी फजल से बरगज़िदा होने के बाद कुछ बाकी है। और इसराइल जिस चीज की तलाश करता था उसको ना मिली, बल्कि बरगज़िदा को मिली, चुने हुए लोगों को मिली। ये एलिया नबी जिसने इस्माइल के डर से दौड़ा, उसने जब 400 बाल के नबियों को मार दिया सच्चाई के लिए, और इस्माइल उसके पीछे पड़ गई कि तुझे मैं जान से मार दूंगी। इतना दलेर आदमी डर और खौफ से भागा। उसके पास खुदा ने इख्तियार दिया था, उसके पास खुदा ने उसको भस्म करने वाली आग दी थी। उसने आसमान से दुआ की, वो कुर्बानी आसमान से उतरी और उसको भस्म कर गई। इतना इख्तियार एलिया के पास था, लेकिन वो डर का भागा हुआ, और वो भाग के आगे गया। खुदा उसे हुरम के पहाड़ पर ले गया। खुदा ने उससे पूछा कि तू क्या करता है? उसने कहा मेरे खुदावंद सिर्फ मैं ही बचा हूं, बाकी और कोई तेरा नबी नहीं बचा, सबको उन्होंने मार दिया। वो मेरी जान के भी खुदा बोलता है क्या कहा तूने? तू अकेला ही नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए 7,000 आदमियों को चुन लिया है। और मेरा खुदा आज सबको बोलता है कि आप सबको उसने चुन लिया। उसने बेशुमार एलिया के लिए चुनता है, हमारे लिए चुनता है, अब सबके लिए चुनता है। पहला कुरिन्थियों पहला बाब उसकी 27 आयत में लिखा हुआ है, मगर खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे। खुदा दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया है, ताकि मौजूदा लोग जहान के लोग हैं वो सब शर्मिंदा हो। वो सब हम लोग हैं, हमको उसने चुना। वो कहता जमीन के स्वानों से मैंने तुझे चुन लिया, मैंने तुझे अपने लिए बना लिया, मैंने तुझे अपने लिए चुना, ताकि तुम्हारी जिंदगी में वो फल जो मैं दे रहा हूं कायम हो जाए, और वो फल पूरी दुनिया में आप लेकर जाओ। पाक रूह के फल, पाक बरकतों के फल, पाक रूह की ममूरी के फल, पाक नबूतों के फल, पाक कलाम के फल, पाक जलाली रोयों के फल, पाक खुदा की कुदरत के फल जो आपकी जिंदगी लबालब भर जाए। चुने हुए लोग को भरेंगे, लेकिन जरूरी है कि आपकी जिंदगी गुनाह से पाक, आपकी जिंदगी पाक और साफ, आपकी जिंदगी पकीज़गी से ममूर, आपकी जिंदगी किसी दुनियावी चीज आपके ऊपर गालिब तक ना आए। हर चीज को, शैतान की हर कुदरत को बाइंडर रिव्यू करते हैं। कोई इल्जाम, कोई हिस्सा, कोई चीज आपकी जिंदगी में बिल्कुल पाक और साफ और मुकद्दस और जलाली। आपकी जिंदगी में सिर्फ खुदावंद यीशु और यीशु और यीशु और यीशु और बाप बेटा और रूह कुदस आपकी जिंदगी में काम करें, तब आप उसके चुने हुए लोग होंगे। कोई बीमारी, कोई तबाही, कोई तकलीफ, कोई बेचैनी, कोई बेरोजगारी, कोई तंगी, कोई चीज चुने हुए लोगों के नजदीक नहीं आएगी। जब खुदा ने मूसा को बुलाया, मूसा के बाद बादशाह थी, उसने नहीं देखा बादशाह, उसने नहीं देखा मेरा क्या होगा। मूसा ने सब कुछ टुकरा के खुदा के साथ चल पड़ा और खुदा के सारे कामों को आगे लेकर बढ़ा। कलाम ने लिखा ना उसकी आंखें चुंधियाई, ना उसकी कमजोरी हुई, बल्कि खुदा ने खुद पहाड़ पर से बोला कि तू आज तैयार हो जा, मैं तुझे उठा के लेके जाऊंगा, मैं तुझे खुद दफन करूंगा। मेरा खुदा आपको सबको, जब वो जामन हो जाता है, वो आपकी छोटी बन जाता है, वो आपकी गारंटी बन जाता है, वो आपके साथ खड़ा होता है, तो आपको किसी चीज को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोई तंगी, कोई बेचारी, कोई नाखुशी, कोई डिप्रेशन, कोई दुनियावी चीज आपके ऊपर गालिब नहीं होगी। फकत जब उससे बोले मेरे खुदा, मेरे बादशाह, मैं तेरा अपना बेटा, देख मैं तेरे आगे, तेरे सामने खड़ा हूं, उसका जलाली हाथ, उसका मसा वाला हाथ,
उसका कुदरत वाला हाथ आपके ऊपर बढ़ेगा और आपकी दिलेरी बन जाएगा और आपकी शादवानी बन जाएगा और आपको तस्कीन देगा और आपको सुकून देगा और आपको अपने इत्मीनान से पुर करेगा। आपकी जिंदगी में कोई बेचैनी नहीं होगी, आपकी जिंदगी में कोई बीमारी नहीं। वो कहता है तपौली तेरे डेरे में ना चाहती बागी, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकूंगा, मैं तुम्हारे बीच में से हर किस्म की बीमारी को दूर करूंगा, हमेशा के दूर करूंगा। जोरदार तालियों से खुदा के नाम को जवाब, जोरदार तालियों। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है मत्ती 24 बाब उसकी 22 आयत में कि खुदा ने किस तरह कहा, मुबारक है वो आदमी जिससे तू बरगुज़ीदा करता और अपने पास आने देता, ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे और तेरे घर की खूबियों से, तेरी मुकद्दस हैकल से आसूदा हो। उसकी मुकद्दस हैकल ये है जिससे आप खुशियां महसूस करते हैं जब उसके घर में आते हैं। मैंने हमेशा दुआ में कहता हूं कि हमें कोई दुनियावी खुश तक न रहे, हम तुझमें मदहोश हो जाए, उसके घर की खूबियों से आसूदा हो जाए। किस तरह पहला सैमुएल में बताया हुआ है। हन्ना खुदा की पाक बारगाह में आई क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि खुदा वहां मौजूद है। वो अच्छी तरह जानती थी खुदावन सबकी फरियादें सुनता है, खुदावन एक एक हमारी मुनाजात सुनता है। अभी आपने बेशुमार गवाहियां सुनी। खुदा यकीनन हमारी दिल रूह जान को जानता है, आपकी एक एक जरूरत को जानता है। अन्ना की जरूरत थी उसने कि उसकी सोतन उससे ताने मारती थी। उसने रो के खुदा से कहा, खुदावन अगर तू मुझे नरीना औलाद दे तो मैं तेरी ही बारगाह में दे दूंगी। खुदा ने उसको सैमुएल दिया और सैमुएल छोटा सा होगा, राइल की तरह होगा या जरमाया के जितना होगा। मां ने बगैर किसी हील इज्जत अपने बेटे को खुदा की बारगाह में दे दिया और मां के पेट से ही उसने, खुदा ने उसे सिलेक्ट किया था, चुन लिया था। और सैमुएल की एक एक दुआ खुदा ने कलाम में लिखा है, उसकी दुआ को कभी मिट्टी में मिलने नहीं दिया। जब आप चुने हुए लोग, जब आप उसके मुकद्दस लोग, जब आपकी जिंदगी उसके लिए, आपकी भी दुआएं कभी जमीन पर नहीं गिरेंगी। आपकी एक एक दुआ, एक एक इल्तिजा, एक एक फरियाद, एक एक मुनाजात सीधी आसमान पर, सीधी उसकी पाक बारगाह में, ओ उसकी मुकद्दस तख्तगाह में, जो खुदा बाप, जो यीशु नासरी खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, उसकी सारी दुआएं फ्रैंकिंसेंस की तरह, खुशबू की तरह फरिश्ते लेके जाएंगे और उसी वक्त मिजरी आसमान से इधर से दुआ जाएगी और उधर से दुआ सीधी नीचे आएगी, आपके लिए जवाब लेकर आएगी, आपके लिए जवाब लेकर आएगी। दरखास्त तेरिया मैं आप ही करूं कबूल, सियोन विचो तेरा खुदा। आपकी एक एक दरखास्त, एक एक फरियाद, एक एक इल्तिजा हमेशा के लिए सुनता है और जवाब देता है। हालेलुया। जोरदार तालियों से खुदा उनके नाम से, क्योंकि वो आपका खुदा है, वो हम सबका खुदा है। एक दूसरे को बोले, मेरी दरखास्त, मेरी फरियाद सुनने वाला आपका खुदावंद है, आपका खुदावंद है, हम सबका खुदावंद है। वो अब तक था, अब तक है, हमेशा रहेगा और उसका नाम यीशु नाम, उसका नाम यीशु नाम। हालेलुया। वो सारी फरियादें सुनता है, वो आपको जवाब देता है। उसकी हैकल में कामल श्वास, उसकी हैकल में, उसके हैकल की सूदगी, कितनों ने उसकी हैकल की असूदगी पानी है। आपने बड़ी गवाहियां सुनी है। आज जब उसकी सूदगी पानी है तो अपने हाथ से लड़ा के खुदा आज मुझे मैनू अपने रूह दे नाल भर दे, मैनू अपने रूह दे नाल कामल कर दे। मैं यीशु तेरे जैसा, तेरे साथ, तेरा प्यारा बेटा, तेरी प्यारी बेटी, तू मुझे भर दे मेरे खुदा, तू मुझे भर दे मेरे खुदा, तू मेरे साथ हो जा मेरे खुदा। वो आपको भरेगा, वो अपनी कुवत से भरेगा। खुदा का कलाम आज आपको कहता है कि आप उसके चुने हुए लोग हैं, आज आप उसके मुकद्दस लोग हैं। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है कि बरगज़ीदों की खातर उसने सारे दिन घटा दिए। जब आखिरी वक्त आएगा, कलाम में लिखा हुआ है कि कोई छत पर हो तो नीचे ना आए, कोई खेत में हो तो उधर ही रहे। इतनी जबरदस्त आफत आएगी। लेकिन खुदा ने जिनको चुना, हम सबको चुना, आपके लिए चुना, बरगज़ीदों को चुना, उन सब के लिए खुदा ने वो दिन सारे भी जितने हैं
वो दिन आगे कर दिए ताकि तंगी का, ताकि आप सब खुदा में मजबूत हो जाए, अब सब खुदा में कायम दायम हो जाए, अब सब खुदा में ऐसे ईमानदार बन जाए कि दूसरों को मिलियन सोल जब तक आप जीत रहे तब तक खुदा नहीं आएगा, लेकिन हर किस्म की आफत से आपको बचा के रखेगा, हर किस्म की आफत से आपको फतहमंदी देगा, हर किस्म की बुजुर्ग को आपके नजदीक तक नहीं आएगी, उनको आपको अख्तियार देगा। जाओ मेरे नाम से सबको बिछो खिंचो, शैतान की पूरी कुदरत पर गालिब हो, तुम्हें कोई जर तक नहीं पहुंचेगा। मत्ती 10 बाब उसकी पहली आयतों से लिखा हुआ है, जाओ मेरे नाम से बीमारों पर हाथों को शिफा पाएंगे, बुजुर्गों को मदद पाएंगे। ये खुदा की महकल में असूदा होने की कुदरत और ताकत है जो आपको देना चाहता है। जब आप उसके चुने हुए लोग, जब आप उसके खून खरीदे लोग, जब आप काबिल ईमान से खुदा की बारगाह में, खुदा की तख्तगाह में आएंगे, सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी हमेशा करी जाएगी, सारी बेरोजगारी आज यीशु नासी नाम में हमेशा करी खत्म होगी। ये जो लफ्ज बोला मैंने मेरे में हुए खुदा के लफ्ज है, खुदा का फाकरू आपके लिए बोल रहा है। कोई तंगी, कोई बेचारी, कोई मफरूजी, कोई गिरती गिरू आपको छू तक नहीं सकेगी, क्योंकि आप सब खुदा के चुने हुए लोग हैं। ये बड़ा जरूरी कलाम है, आप लोग चुने हुए लोग हैं। आपने कैसे बरकत पानी है, कैसे दूसरों के लिए बरकत का वसीला बना, कैसे दूसरों के लिए रहमत नहीं कर लिया, कैसे आप खुदा के नाम से सिलेक्ट हुए, आप खुदा ने आपको चुना, खुदा ने नाम लेके आपको बुलाया हुआ है। उसने बोला मां के पेट से लेकर सर के बाल सफेद होने तक, बुढ़ा होने तक मैं तुझे संभाले रखूंगा। हालेलुया। उसके सारे वाले हाँ के साथ दाऊद के लिए उसने कहा मेरे दिल के मुताबिक मेरा खातम मुझे मिल गया, मैंने दाऊद उसने खुद उसे बसा किया और वो उसे बर्तों से बराबर किया, एक शेफर्ड वैसे उसने उसे बादशाह बना दिया और अपने नाम के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। कलाम में लिखा है मुकाशवा 17 वापस की 14 में, वो बर्रा से लड़ेंगे और बर्रा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह और शहंशाह का शहंशाह है। जो बुलाए हुए हैं बर्गजीदा और वफादार उसके साथ होंगे, वो भी उन पर गालिब आएंगे। खुदा के साथ बर्रा जब शैतानी ताकतों को कुचलने के लिए निकलेगा तो वो लोग भी जो चुने हुए, जो बर्गजीदा, जो वफादार, जो खुदा के नाम से कहलाते हैं, वो भी उसके साथ लड़ेंगे और हर जगह पर गालिब आएंगे। कलाम में लिखा हुआ है खुदा ने तुझको रूए ज़मीन से सब कौमों से चुन लिया ताकि उसकी खास उम्मत हो। सब कौमों से आपको चुन लिया। जो कोई भी खुदा पर ईमान लाएगा वो उसका बेटे बेटियां बन जाएगा। पूरी कौमों में से खुदा ने, मैंने कहा ना, हम बेवकूफों को, हम बेवजूदों को, हमें अपने लिए उसने चुन लिया। जितना ने भी उस पर ईमान लाया उसने उन्हें अपने बेटे बेटियां बनने का हक बख्श दिया। जितनों ने उसकी रास्तबाजी को पूरा किया, जितनों ने उसके नाम का बपतिस्मा लिया, जितनों के माथे पर उसके खून की छाप लगी, जितनों ने नई जिंदगी पाई, वो सब के सब खुदा के पाक बेटे बेटियां। हालेलुया। एक दूसरे को बोले कि तू खुदा का पाक बेटा है, खुदा की पाक बेटी है, मेरा खुदा तुझसे बड़ा खुश है, मेरा खुदा तुझसे बड़ा खुश है, मेरा खुदा तुझसे बड़ा खुश है। का कलाम ने रोया में अपने मुकद्दसों से कलाम किया और फरमाया कि मैंने एक जबरदस्त को मददगार बनाया और कौम में से एक को चुनकर सरफराज किया। मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया और अपनी मुकद्दस तेल से मैंने उसे मसा किया और मेरा हाथ उस पर रहेगा और मेरा बाजू उसको तकिए देगा। कलाम में लिखा हुआ है मसीह खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बड़ा बरगजीदा और चुना हुआ था। देखो ये मेरा खादिम है जिसे मैंने चुना है और मेरा प्यारा, मेरा दिल उससे बड़ा खुश है, मेरी रूह अपनी रूह पर डल गैर कौमों का इंसाफ करेगा। मेरा खुदा आज आपको बेहद पसंद करता, बेहद चाहता है। वो आज आपको, जब आप खुदावंद के लोग होंगे तो खुदावंद के लोगों, जब आपने उसकी रास्तबाजी को पूरा किया, जब आपने उसके नजदीक आए, जब उस दिल रूह जान से, वो कहते मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा, जहां तू जाएगा तेरे साथ चलूंगा, जिधर तू खड़ा होगा मैं तेरे साथ खड़ा होगा। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने चुने हुए लोगों की
वो ऐसी पालना करता है। और आज खुदा ने आपसे हम कलाम हुआ, खुदा ने आपसे कलाम की बातें की है। आज खुदा आप सबको बरकत देना चाहता है। कितनों ने इस कलाम को दिल रूह जान से कबूल किया है? हालेलुया। दिल रूह जान से कि आज मैं अपने खुदा की चुनी हुई बेटी हूं, अपने खुदा का चुना हुआ बेटा हूं। मेरी जिंदगी का एक एक पल उसके लिए, मेरी जिंदगी का एक एक सेकंड उसके लिए। जब आप चुने हुए लोग, जब आप इकरार करेंगे तो उसका दाना हाथ आपके ऊपर आ जाएगा, उसका कर्म वाला हाथ आपके ऊपर आ जाएगा, उसकी निगाह कर्म आपके ऊपर आएगी। और आप जिस कंपनी में कर रहे हैं उसके सारे मालकान को आपके लिए हमायत करेगा और आपको वहां पर इज्जत बख्शेगा। आपके लिए बायस तरक्की आप बनेंगे। आप दूसरों के जिस जगह काम कर रहे हैं आप उनके लिए दुआ करें, खुदा उधर आपको डबल सरफराजी देगा। अगर आज आप खुदा के आगे कमिट करेंगे। और सबसे बड़ी जरूरी चीज है, मेरी आप सबसे दरखास्त है, आप चुने हुए लोग हैं और खुदा के पूरे हुक्म अपने सर दिल, अपने से जान, अपने से रूह, अपने से ताकत से खुदावंद अपने खुदा की हर बात सुनूंगा, खुदावंद अपने खुदा की हर बात मानूंगा, खुदावंद अपने खुदा की हर बात पर अमल करूंगा। और उसकी बात यह है कि हम सब दिल रूह जान से अपने खुदावंद खुदा की सेवा करें, अपने खुदावंद खुदा के हुक्म माने, अपने खुदावंद खुदा के कामों पर चले, अपने खुदावंद खुदा के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सब आंखें बंद हो जाए, कोई इधर उधर नहीं देखे, किसी को भी कोई होश तक नहीं, सब खुदा में मदहोश हो जाए, क्योंकि खुदा कुछ बहुत बड़ा काम करना चाहता है। खुदा बाप, तूने इनको देख लिया, तूने इनकी तरफ नजर करम की, हम तेरा शुक्र करते हैं। बाप है, बाप है, बाप है, बाप, अबा 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 अबा, वी लव यू, वी प्रेज, वी लव यू, वी प्रेज, वी लव यू, वी प्रेज, वी लव यू, वी प्रेज। किसी के दाने चूकने में, दाने चूकने की में दर्द हो रही है, खुदा उसे शफा दे रहा है। खुदा का पाकरूज से छू रहा है, खुदा का पाकरूज से छू रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। किसी के सीने में थोड़ी थोड़ी दर्द हो रही है, अपने सीने पर हाथ रखें, खुदा आपको अभी और इस वक्त कामल शफा दे रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये चुने हुए लोग हैं खुदा, चुने हुए लोग हैं। किसी के स्टमक के एलिमेंट में, स्टमक में दर्द हो रही है, मीठी मीठी दर्द हो रही है, खुदा उससे कामल शफा दे रहा है, कामल शफा दे रहा है, कामल शफा दे रहा है। किसी का बुखार है, वो उतरता नहीं है, वो बड़ा बेचैन है, यीशु मसीह उसकी सारी तप जा रही है, यीशु मसीह के नाम जा रही है। हम तेरा शुक्र करते हैं। किसी को पीछे की साइड स्वेयर हेडेक है, आधे सर में दर्द है, खुदा आपको शफा दे रहा है, खुदा आपको शफा दे रहा है। खुदा का दाना हाथ बढ़ा के आपके सर पर बढ़ा रहा है और आपको कामल शफा दे रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। किसी को बहुत बड़ी मायूसी है, बड़ी फिक्रों में है, खुदा आपकी सारी फिक्रों को उठा रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। वो कहता है जब फिक्रों की कसरत मेरे दिल में होती है, तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। आपको सारी फिक्र उस पर डाल दो, खुदा आपको शादमानी देगा, खुदा आपको बहाल करेगा, खुदा आपको उठा खड़ा करेगा। थैंक यू लॉर्ड। किसी को हेपेटाइटिस की बीमारी है, खुदा उसे कामल शिफा दे रहा है, कामल शिफा दे रहा है, कामल शिफा दे रहा है। किसी की अंतड़ियों में, मेदे में बड़ी सख्त तकलीफ है, खुदा उस मेदे की बीमारी से कामल शिफा दे रहा है, कामल शिफा दे रहा है। तेरा शुक्र हो मेरे बाप, मेरे अब्बा, मेरे पाक यहोवा, मेरे यीशु नासरी, वी लव यू, वी प्रेज यू। तेरा शुक्र हो पाकरू, तेरा शुक्र हो। यू आर अ ग्रेट गॉड, यू आर अ माइटी गॉड, यू आर द पावर ऑफ गॉड। होली स्पिरिट, वी लव यू, वी प्रेज यू। तेरा शुक्र, मेरे बार तेरा शुक्र। ये सब तेरे लोग हैं, इन सब पर तेरे पाक खून को छिड़कता हूं, इन सब के लिए तेरा बंदा कामल शिफा मांगता है। खुदा यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, बख्श दे। आमीन, आमीन।